Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. Well, it is the second class of our revision of first chapter, that is computer languages and hardware components. Well, students, it will be your last revision video of this chapter before your exams. So now you have to be very careful about this chapter. Well, in this chapter we have a limited topics only, so you have to read or you have to go through each and every word or heading properly. Fine? You don't have to skip anything from this chapter. Kindly read your notes very properly and very carefully. Now, one most important thing. In this chapter, I gave you one sheet. So, you have to revise that sheet also very properly. Well, today we have to discuss about computer hardwares. In our previous class, we have discussed about computer languages, their classification and some other terms. Fine. There was one question which I've got in the comment section, that was about mnemonics. Fine. Well, now computer languages, in assembly language, along with the binary numbers, we use some alphabets or we use some words also. Fine. So all the words which are used in assembly language, these words are termed as mnemonics. Fine. You just have to learn this much of definition. Now let's begin with today's class, and today we have to discuss about computer hardware in detail. Fine. Well, we will discuss only about the internal computer hardware components. Fine. We just have to discuss about the internal hardware components. We don't have to discuss about these terms like input devices, output devices, storage and processing devices. Okay, this you have already done in class 6. In this class, we only have to discuss about these internal hardware components, and only this part and that portion of computer languages will be in your exam. Okay, now let's begin. Well, generally if we talk about this term hardware, then hardware is the components that we can touch or that we can see very easily. Fine. These hardwares are categorized into 4 categories, that is input devices, output devices, storage and processing unit. Fine. Now, we have to discuss about only internal hardware components. So, let's start with the internal hardware components. In the internal hardware components, we have motherboard, then we have SMPS, we have video card, we have sound card, we have modem, then we have some other components like we have our main computer's processor. Fine. And some other things. Well, first of all, we have to discuss about this term motherboard. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है भाई, what is this motherboard? और आखिर इसका नाम ये motherboard क्यों है? Fine. Well, in general, this motherboard is the main circuit board inside our computer system. It has all the ports and sockets where we can plug in our memories, we can plug in our other input and output devices, and we can plug in all the other components and all the other internal hardware of our computer system. Fine. मतलब इस मदरबोर्ड में कुछ सॉकेट्स होते हैं, कुछ पोर्ट्स होते हैं, जहां पर हम लोग अपनी सारी सर्किट चिप्स को, मेमोरी चिप्स को, डेटा चिप्स को, फाइन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं. फाइन. ओवर दिस साइड ऑफ द मदरबोर्ड वी हैव ऑल द पोर्ट्स एंड सॉकेट्स. हियर ऑन दिस साइड वी हैव द रैम स्लॉट्स. हियर ऑन दिस साइड वी हैव सम मेमोरी स्लॉट्स. फाइन. Then here on this side we have our processor. Fine. It has various ports where we can connect various types of memories and various other components. Fine. Here this side we have this PCI slot where you can plug in your video or audio card. Fine. Whereas this side we have this RAM slot where you can plug in your RAM. Fine. And some other things. So only this much you have to learn about this term motherboard. कि भाई motherboard क्या है? It is the main circuit board which carries all the important components of our computer. Fine. It is generally available either at the bottom or at the back of our computer's CPU cabinet. Okay. Then our next term is SMPS. SMPS stands for Switched Mode Power Supply. SMPS क्या है भाई? SMPS एक power supply वाला box है. ये box दिखने में बेटा कुछ ऐसा होता है. And this box is generally available at the bottom of our CPU cabinet. Fine. हम लोगों के CPU cabinet के नीचे या फिर कभी कभी top left corner में भी वाला box लगा हुआ होता है. इस box में कंप्यूटर की main power supply plug in होती है. Fine. It means जो हम लोगों के CPU की main cable होती है बेटा, वो main cable इस box में हम लोग plug in करते हैं. Okay. Now, this circuit board generally provides and manages the overall electric current of our computer's CPU. मतलब ये क्या करेगा? कंप्यूटर के CPU की overall electric supply को manage करेगा और control करेगा. Fine. Then our next term is video और graphics card. अब ये video और graphics card क्या होता है भाई? Well, जब भी हम लोगों को कंप्यूटर में कोई भी क्या करना है, गेम खेलना है, कोई भी हाई एंड क्वालिटी की वीडियो देखनी है, कोई एनिमेशन क्रिएट करना है, कोई अच्छे क्वालिटी की हम लोगों को कार्टून मूवी देखनी है, तो फॉर दैट वी नीड सम ग्राफिक्स. Fine. And for analyzing or processing these graphics, we need a special kind of adapter which is termed as our graphics card. Fine. मतलब इस स्पेशल टाइप के आउटपुट सिग्नल को हैंडल करने के लिए
हम लोगों के कंप्यूटर में एक स्पेशल कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, दैट स्पेशल कार्ड इज टर्म्ड एज आवर वीडियो कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड. फाइन. जनरली यू माइट हैव हर्ड दैट नाउअडेज वी हैव सम स्मार्टफोन्स. जितने भी आजकल स्मार्टफोन्स आ रहे हैं इनमें कुछ अलग अलग प्रोसेसर्स आते हैं जिनमें कि अलग अलग गेमिंग कैपेबिलिटीज होती हैं. इट मीन्स क्या हुआ भाई, ये जो गेमिंग कैपेबिलिटी वाले मोबाइल फोन्स हैं इनमें कुछ अलग टाइप के ग्राफिक्स के अडेप्टर्स या ग्राफिक्स के प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं. फाइन. सिमिलरली हम लोगों को हमारे मोबाइल फोन्स की तरीके हमारे कंप्यूटर्स में भी गेमिंग के लिए और हाई एंड ग्राफिक्स के लिए कुछ स्पेशल कार्ड्स को प्लग इन करना पड़ता है, एंड दीज कार्ड्स आर टर्म्ड एज आवर ग्राफिक्स कार्ड. फाइन. जैसे कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा हुआ है. देन नेक्स्ट वी हैव साउंड कार्ड. वेल, अभी हम लोगों ने बात करी थी ग्राफिक्स की, अब ग्राफिक्स के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है साउंड. फाइन. विदाउट ऑडियो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर मल्टीमीडिया मोबाइल फोन्स एंड इन योर कंप्यूटर्स. फाइन. ऑडियो के बिना तो भाई हम लोग अपने लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में कोई वीडियो भी नहीं देख पाएंगे, कोई हम लोग एनिमेशन क्लिप नहीं क्रिएट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पीपीटी नहीं रिकॉर्ड कर सकता था. फाइन. इट मीन्स दिस ऑडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस. फाइन. एंड फॉर वर्किंग विद दीज ऑडियो सिग्नल्स वी नीड अ कार्ड लाइक दिस. ये हम लोगों का क्या है, इट इज अ साउंड कार्ड. दिस साउंड कार्ड मैनेजेस एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर साउंड. इसमें कंट्रोलर्स होते हैं जो क्या करते हैं, साउंड के इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स को मैनेज करते हैं. ओके. देन नेक्स्ट वी हैव दिस टर्म मॉडेम. फाइन. अब ये मॉडेम तुम लोगों ने मोस्टली अपने घरों में देखा होगा, अगर तुम लोगों में से किसी घर में वाईफाई लगा हुआ है तो. अगर वाईफाई नहीं लगा हुआ है बेटा तो तुम लोगों ने स्कूल में देखा होगा. फाइन. अर्लियर इट वाज देयर आर स्टाफ रूम. फाइन. अब ये मॉडेम क्या करता है भाई, दिस मॉडेम जनरली स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. मॉडेम का मतलब फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, दिस मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. ये क्या करता है भाई, ये हम लोगों के एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है या फिर डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. फाइन. जनरली जब भी हम लोग डेटा को नेटवर्क में शेयर करते हैं, फाइन, देन टू मेक दैट डेटा नेटवर्क अंडरस्टैंडेबल, दिस मॉडेम कन्वर्ट्स आवर एनालॉग सिग्नल्स टू द डिजिटल फॉर्म. फाइन. जब सेंडर डेटा को सेंड करता है तो वहां पे क्या होता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करा जाता है, और जब रिसीवर डेटा को रिसीव करता है तो वहां पे डिजिटल को भी एनालॉग में कन्वर्ट करा जाता है. फाइन. बट तुम लोगों को इस टर्म को इतनी डिटेल में नहीं समझना है, यू जस्ट हैव टू लर्न दिस फुल फॉर्म, दैट इज this modem stands for modulator and demodulator. First thing and second important thing you have to keep in your mind is कि ये भाई मॉडेम यूज होता है हम लोगों का नेटवर्किंग में. कहां पर यूज होता है ये, बेसिकली नेटवर्किंग में यूज होता है. इसके बिना हम लोग इंटरनेट को अपने डिवाइसेस में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं. अब एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मोबाइल फोन्स में हम लोग मॉडेम क्यों नहीं लगाते हैं, लैपटॉप्स में हम लोग मॉडेम क्यों नहीं लगाते हैं. तो इन जनरल इन आवर लैपटॉप्स, इन आवर मोबाइल फोन्स वी हैव अ इंटरनल मॉडेम. क्या होता है भाई, इसमें पहले से ही अंदर ही मॉडेम एक एम्बेडेड होता है. फाइन. जनरली वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉडेम, इंटरनल मॉडेम एंड एक्सटर्नल मॉडेम. वो मॉडेम जो हम लोग अपने डिवाइस के अंदर पहले से लगा होता है, हम लोग अंदर प्लग इन कर सकते हैं, इट इज टर्म्ड एज द इंटरनल मॉडेम. व्हेयरएज द मॉडेम व्हिच वी हैव टू यूज आउटसाइड आवर कंप्यूटर सिस्टम एज अ फिजिकल यूनिट, व्हिच इट इज टर्म्ड एज आवर एक्सटर्नल मॉडेम. फाइन. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम पोर्ट्स. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में. ये पोर्ट्स क्या होती हैं? वेल, इन जनरल जब भी हम लोग कंप्यूटर में डेटा की बात करते हैं, फाइन, तो हम लोग को वहां पर या तो डेटा का इनपुट करना पड़ता है या फिर हम लोग डेटा को वहां पर एज एन आउटपुट रिसीव करते हैं. फाइन. तो फॉर दैट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा इन आवर कंप्यूटर वी हैव वेरियस पोर्ट्स, एंड इन दीज पोर्ट्स वी कैन प्लग इन आवर वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. मतलब ये पोर्ट्स क्या है भाई, ये पोर्ट्स हैं, ये कुछ सॉकेट्स हैं जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को प्लग इन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के फोन में यूएसबी पोर्ट होता है बेटा, तो वो भी क्या है, एक तरीके का पोर्ट है. हम लोगों के लैपटॉप्स में हम लोग जहाँ पे पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं वो भी क्या है, एक पोर्ट है. फाइन. तो जितनी भी वो सारी चीजें जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी यूनिट को या किसी भी डिवाइस को प्लग इन कर सकते हैं जिस भी सॉकेट के थ्रू, उस सॉकेट को हम लोग यहाँ पर इन जनरल पोर्ट कहते हैं. फाइन. और ये सारे पोर्ट्स कहाँ पर होते हैं भाई, तो ऑल दीज पोर्ट्स आर अवेलेबल इन आवर कंप्यूटर्स मदरबोर्ड. कहाँ पर होते हैं, चलो दिखाता हूँ. वेल, आर यू एबल टू सी दिस पोर्शन, दिस सेक्शन ओवर हियर? फाइन. इस सेक्शन में कंप्यूटर के सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं. Okay. Now let's discuss about all these ports one by one. Our first port type is serial port and parallel port. Fine. Serial port और parallel port क्या होता है भाई? Serial port generally क्या करता है, 1 bit of data at a time send करता है. मतलब ये एक एक बिट करके सेंड करेगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ दिखने में ऐसा होता है. फाइन. इन स्ट्रक्चर्स को मेमोराइज कर लेना एक बार बहुत ढंग से. फाइन. यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज इमेजेस वेरी प्रॉपरली. अब इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो सीरियल पोर्ट जनरली यूज होता है माउस में, गेमिंग कंट्रोलर्स में, मॉडेम्स में या फिर ओल्ड प्रिंटर्स में. फाइन. देन नेक्स्ट वी हैव दिस टर्म पैरेलल पोर्ट. पैरेलल पोर्ट क्या करता है भाई,
पैरेलल पोर्ट कैन सेंड मल्टीपल बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम। मतलब ये क्या करता है भाई, एक बार में बहुत सारा डेटा शेयर करने में या सेंड करने में वर्क करता है। फाइन, इट इज समथिंग लाइक दिस। देन नेक्स्ट वी हैव PS2 पोर्ट। ये PS2 पोर्ट भी मोस्टली गेमिंग कंट्रोलर्स या माउस या कीबोर्ड में यूज होता है। फाइन, ये PS2 पोर्ट भी क्या करता है, ये भी सीरियल पोर्ट की तरीके वर्क करता है, बट इसमें 6 पिन्स होती हैं। इट मींस इट कैन सेंड अप टू 6 पिन्स 6 बिट एट अ टाइम। फाइन, ये ज्यादा फास्ट होता है इन कंपेयर टू आवर सीरियल पोर्ट। एंड देन वी हैव दिस USB पोर्ट। ये USB पोर्ट बहुत फास्ट होता है। फाइन, इसकी स्पीड डिपेंड करती है USB के टाइप के ऊपर, इसलिए तुम लोगों को इसकी स्पीड या इसकी कैपेसिटी लर्न नहीं करनी है। दिस टर्म USB स्टैंड्स फॉर Universal Serial Bus. Fine, and it is generally used to connect devices like mouse, music player, pen drive, and some others. Fine, and this Universal Serial Bus is mostly available in all the modern computers and all the modern laptops. Then next we have this term that is HDMI. अब ये HDMI क्या है भाई, HDMI एक टाइप का स्पेशल डिस्प्ले पोर्ट है। फाइन, हम लोगों के आजकल के सारे मॉडर्न मॉनिटर्स में, टेलीविजन्स में ये HDMI पोर्ट पहले से ही इनबिल्ट होता है। एंड बाय यूजिंग दिस HDMI पोर्ट वी कैन ट्रांसमिट हाई डेफिनेशन ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स इन आवर आउटपुट डिवाइसेस। फाइन, ये पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं DVD प्लेयर्स में, ब्लू-रे प्लेयर्स में, हम लोगों के Xbox, PlayStation में। फाइन, LCD और LED मॉनिटर्स में, एंड इट इज जनरली यूज्ड टू ट्रांसमिट हाई डेफिनेशन ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स। Then next we have this VGA port. ये VGA port generally use होता है हम लोगों के computers में। Fine, सिर्फ और सिर्फ computer में you might have seen that in our computers we have a cable which is connected at the back of our CPU, and one portion of that cable or one part of that cable is connected to at the back of our monitors. So that cable is generally termed as our VGA cable. उस VGA cable में क्या होता है भाई, ये भी HDMI की तरीके है, but it can only transmit the video signals. ये audio signals को share नहीं कर पाती है। Okay? ये जनरली यूज होती है पुराने मॉनिटर्स में और प्रोजेक्टर्स में। वेल, इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव टॉट यू इन दिस चैप्टर फ्रॉम दीज वीडियोस and all your class notes. You have to read everything very properly. Fine, till then keep learning, stay safe, stay healthy, and keep supporting us, and thanks for watching this video.